السلام علیکم. سب سے پہلے تو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. تو سر میرا نام محمد جون علی اور میں BSN فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے نوجوان جن کے پاس وسائل نہیں تھے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو ان کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے ذریعے، آپ کی جماعت کے ذریعے عوام کی خدمت کر سکیں. تو یہ تھوڑا سا بالکل جو دنیا میں موجود ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہی ان کو کانٹیکٹ کریں. آپ لوگ اپنی ذمہ داری خود سمجھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ویدر جو آپ کا لیڈر بننے جا رہا ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا، اس کے اپنے کیا نارمز ہیں، whether this man is correct or wrong، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر آپ کا ذہن، آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو یس اس کے ساتھ سٹینڈ کریں، اور اگر آپ کا دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تو پلیز ڈو ناٹ فالو ہم. نمبر 1. نمبر 2، جو میرے BSN کے اسٹوڈنٹس ہیں، نرسنگ ایک بہت بڑا پروفیشن ہے، بہت نوبل پروفیشن ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے ہمیں 8 لاکھ ڈیمانڈ کی ہے نرسنگ ہیلتھ پرووائڈرز کی. 8 لاکھ، جو کہ پورے پاکستان میں اگر 8 لاکھ ہم بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان کی اکانومی جو سی ہے وہ 35% اپ ہو جائے گی، لیکن ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، راول نے آج سے کوئی 2 سے 3 سال پہلے ایک جرمن انسٹرکٹر ہم نے رکھ لیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی فرسٹ ایئر 4 سال کا کورس ہوتا ہے، اور جب آپ BSN کریں گے تو آپ کو A1 A2 کلیئر کر لینا چاہیے. 4 سال میں جرمن لینگویج پڑھائی جاتی ہے راول کالج میں. اینڈ دس از مائی مینیفیسٹو. یہ مجھے پورے پاکستان میں آئی ایم دی اونلی پرسن، راول از دی اونلی انسٹیٹیوشن جس میں جرمن لینگویج پڑھائی جاتی ہے. سو دس از، آپ نے ڈفرنس دیکھنا ہے کہ آپ نے اس پولیٹیکل پارٹی کو کیوں فالو کرنا ہے. کیا یہ صرف باتیں کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ سو اگر آپ کلیئر ہیں تو یس آپ اپنا بنائیں، ان سب کو کلیکٹ کریں اور ان تک پیغام پہنچائیں اور ان کو پولیٹیکل پارٹی میں شامل کریں. تھینک یو. السلام علیکم. میں DPT فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آزادی رائے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ وہ آزادی رائے ہے ان کو، اور جو ان کو ڈیفیکلٹی اور جو غلط یا اگینسٹ ہے وہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج کل اس طرح کے جو بھی ایسا بندہ ہے جو بولتا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے، لیکن اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے برا سلوک ہو، اس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بیٹا، گڈ کوشچن. آزادی رائے ہونی چاہیے، بٹ ملک کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں جرنلزم پہ، آزاد صحافت پہ. اسٹوڈنٹس کے لیے تو بالکل آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جو سینئرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کا ریمیڈی اینڈ سولوشن دینا ہوتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کو فری ہینڈ ہے. جیسے آج میں فری بالکل آپ کے لیے پروگرام ہی، یہ میں سیریز آف پروگرامز ہم کریں گے جس میں آپ کھل کے دل کی بات کر سکتے ہیں، کھل کے آپ اپنے کوشچنز، اپنے آنسرز لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دل میں جو بھی کوئی ریز ہوتا ہے وہ آپ سوال کریں. آئی ایم ود یو. تھینک یو. Yes, next question. السلام علیکم. This is Abdullah from 3rd year MBBS. اچھا سر، ایز یو مینشنڈ ارلیئر کہ آپ IMF سے جو ہم ایئرلی لونز لیتے ہیں ان کو بریک کریں گے، ٹھیک ہے. آئی ہیو سین اے پارٹی جس نے ٹرائی کیا تھا بٹ دے کانٹ سروائیو مور دین 6 months. سو ہاؤ کین یو گو فار دیٹ کہ ہم IMF سے لونز جو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کر دیں کہ ایئرلی جو لونز لیتے ہیں؟ جی بیٹا، اگین اٹس اے ایکسلنٹ کوشچن. بیٹا، جو بھی پولیٹیکل پارٹی یہ پلان کرتی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے باہر آئیں گے، لیکن وہ ریمیڈیز، وہ سولوشنز نہیں دیتے. اس پارٹی کے پاس کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں تھی جس سے آپ اپنے
फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाएं। नंबर 1, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है? डॉलर्स की, रियाल, दिरहम, यूरोस की क्यों जरूरत होती है? वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रोग्राम्स जाती है तो उसके पास सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारी जितने भी थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता और फिर वो अल्टीमेट उनसे लोन लेना पड़ता है। अच्छा, लोन लेना क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा था। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में कितनी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं, दवाई बनाती हैं, बीमार होते हैं लोग, तो फिर उनको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं और पाकिस्तान में एक भी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो रॉ मटेरियल क्रिएट करती है, तो सारे का सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट हम करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर्स। हम ये जो आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं मुल्क में जो रहता है और फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके लिए भी हमें डॉलर्स चाहिए। डीजल, पेट्रोल, सुपर, हाई ऑक्टेन, ये जब हमारे मुल्क में तो नहीं है, जब हम इंपोर्ट करते हैं हम फिर डॉलर देते हैं। इस तरह नंबर ऑफ ऐसी आइटम्स हैं जो कि हमें डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास डॉलर की किसी किस्म की भी कोई पॉलिसी नहीं है। ये वजह थी बेटा कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर सके। जबान से तो कह दिया था, अब हम जबान से कहने से पहले पाकिस्तान अवामी कुव्वत अभी तक गवर्नमेंट में नहीं आई है, लेकिन कुड यू बिलीव कि जो हमने ये पॉलिसी बनाई है नर्सेस की, सिर्फ एक अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो 5000 नेक्स्ट ईयर हमने नर्सेस को एक्सपोर्ट करना है जर्मनी में, मेल एंड फीमेल, और उनके रिटर्न में सिर्फ उनकी जो सैलरीज है दैट इज 1600 यूरोज। जर्मनी में नर्सेस की सैलरी होती है 3000 यूरोज, जो एक्चुअल उनकी डिग्री के मुताबिक। पाकिस्तान की नर्सेस को वो 1600 यूरोज देंगे, जिसमें से 500 यूरोज वो पाकिस्तान वापस भेजेंगे मार्क्स, एंड उसके बाद बाकी वो अपनी यूटिलाइजेशन करेंगे। तो उस 500 यूरोज से पाकिस्तान को जो अपना हमारे स्टेट बैंक का पैसा होगा फॉरेन एक्सचेंज, वो 3 करोड़ यूरोस होगा। दिस इज पॉलिसी। ये सिर्फ अगर रावल कर रहा है तो इस तरह के बेशुमार नर्सिंग कॉलेजेस अगर मुझे फॉलो कर लें, या मैं गवर्नमेंट में आ जाऊं और मैं एक रूल बना दूं कि हर नर्सिंग कॉलेज अपनी नर्सेस को जापानीज लैंग्वेज पढ़ाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा, कोरियन लैंग्वेज पढ़ाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएगा, तो फिर आप सोचें कि आपको कितना रेवेन्यू आ सकता है जिससे आप लोन्स नहीं ले सकते। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास ऐसी हंड्रेड्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे हम इतना, ये 1.4 बिलियन तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये जो IMF से हमने अभी प्रोग्राम में लिया है, ये दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में MD CAT क्लियर करते हैं कितने बच्चे? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बच्चा। एडमिशंस कितने बच्चों को मिलता है? ओनली 22,000 को। बाकी मेरा बच्चा जाया हो जाता है और वो मुल्क से बाहर जाके चाइना में, कजाकिस्तान में डॉक्टर्स बनते हैं और डॉलर कहां से लेके जाते हैं? पाकिस्तान से। तो देयर इज नो पॉलिसी। तो मैंने इनको लिख के दिया था कि आप इवनिंग में क्लासेस 100 बच्चों को और अलाउ कर दें और उन बच्चों को कंपल्सरी कर दें कि वो डॉलर्स में पे करें स्टेट बैंक को, और वो मुल्क से बाहर, क्योंकि सब बिजनेसमैन ने अपना पैसा, पॉलिटिशियंस ने अपना पैसा मुल्क से बाहर भेजा हुआ है, तो वो डॉलर्स लेके आएंगे अपनी औलाद के लिए और पे करें और उनको एडमिशन मिलेगा, वो डॉक्टर्स बने और डॉक्टर्स को साथ साथ लैंग्वेज दें और वो दूसरे मुल्कों में जाके वापस एक्सचेंज के लिए फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करें। देयर आर नंबर ऑफ ऐसी इस किस्म की पॉलिसीज हैं जिसे हम जनरेट कर सकते हैं। अभी SIFC ने स्टार्ट किया है स्टोन्स का, माइनिंग का, पिकिंग का कर रही है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। तो हमारे पास पॉलिसीज होनी चाहिए। तो जो आपका सवाल था कि उनको चलने नहीं दिया, नहीं बेटा, चलने सब देते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, डिलीवर करने की ताकत नहीं होती, पॉलिसीज नहीं होती हैं, स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। आज हम अपना
मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करके लोगों के सामने आए हैं, इसलिए हम लोगों के सामने नजर से नजर मिला के बात करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा नाम मोमिना महबूब है, मैं LLB पार्ट 4 की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम नेशनल लॉ कॉलेज। सर, आपने मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल के लिए जो पॉलिसीज़ बताई हैं दैट वाज ग्रेट, आप उन पे काम भी कर रहे हैं, बट जो बाकी डिग्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो आपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी डिग्रीज़ के स्टूडेंट हैं, बाकी डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप वो भी डिस्कस कर दें, उनके लिए आप जो है उनके फ्यूचर के लिए आप जी बिल्कुल। बेटा, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि कोई LLB कर रहा है, लॉ कर रहा है, मास्टर्स उसने किया है, MBA किया है, मैनेजमेंट में है, IT में है, इंजीनियरिंग में है, डजंट मैटर। आपने रूटीन में ई-कॉमर्स करना है। हर स्टूडेंट ने ई-कॉमर्स करना है इन मैट्रिक, FSC, FA, BA, BSc, मास्टर्स, इवन PhDs। अब एक PhD है, उसकी कितनी सैलरी होती है आपको मालूम है? पाकिस्तान में कोई बता सकता है? 1.5 लाख रुपया सिर्फ, या मैक्सिमम 2 लाख रुपया। ये जुल्म है एक PhD के लिए। तो अगर PhD स्टूडेंट भी ई-कॉमर्स कर ले तो वो 3 से 4 लाख रुपया एक महीने का कमा सकता है। तो आपके लिए भी बेटा, जो LLB किया हुआ है, उनको भी ई-कॉमर्स 2 मंथ्स का कोर्स होता है, और इसमें पाकिस्तान अवामी कुव्वत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ई-कॉमर्स करवाएगी, वेयर एवर एंड कहीं भी आपको। दिस इज माई गारंटी, आई एम डूइंग दिस, और मैं ये कर रहा हूं। और अपने पूरी क्लास का नाम लिखवाएं, मैं पूरी क्लास को करवाने के लिए तैयार हूं। कुछ और आप कहना चाहती हैं? जी सर, मैंने ई-कॉमर्स के भी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। मैंने डबल डिग्री किया है, मैंने BS भी किया है, मैंने LLB के साथ साथ BS के अभी कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा मैंने ई-कॉमर्स के 3 कोर्सेज किए हुए हैं। स्टिल मैं जहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ, मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं। उसके बावजूद मैं जहाँ पर अप्लाई करती हूँ, मुझे 25,000 या 30,000 से ज़्यादा सैलरी जो है वो ऑफ़र नहीं की जाती। जी बेटा, आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। वो ई-कॉमर्स वाले हंस रहे हैं, अब बैठे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उस साइड पे ई-कॉमर्स वाले बैठे हुए। ई-कॉमर्स जॉब नहीं होती है। ई-कॉमर्स होती है, आपने अपने मोबाइल पे 2 घंटे दे के आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसमें ई-कॉमर्स सिखाया जाता है। उसको डिजाइन कैसे करते हैं, उसको ऐड कैसे बनाना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट अर्न कैसे करना है, और उसके बाद पैसा कैसे आपके अकाउंट में आना है। दिस इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। तो आपने जॉब नहीं करनी। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप जॉब करेंगे, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आप अपना ई-कॉमर्स कोर्स सीखने के बाद अपना पैसा, ये 25,000 इज ए जोक, आई टेल यू। उस दिन मेरे पास मेरी इधर ही बैठी हुई है सोशल मीडिया की, जिसको ई-कॉमर्स आता है, 13,000 कमा के साइड पे हो गई सिर्फ 10 मिनट के अंदर। 13,000 रुपया, सोचे महीने में वो क्या कमाती है। तो बेटा, ई-कॉमर्स इज अ डिफरेंट थिंग, BS एंड IT इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको जॉब्स करनी है। ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से आपने जॉब नहीं करनी। हाँ, उसके लिए आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो वो मैं आपको ई-मार्ट, Amazon की तरह आपको मैं दूंगा, आप आए, और आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे अर्न कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गुलाल अली फ्रॉम 3rd ईयर BDS। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं बलूचिस्तान की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मुझे ये कि मतलब पूरे बलूचिस्तान में एक्सेप्ट KIMS जो नम से एफिलिएटेड है, उसके अलावा कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मुझे ये कि आप इसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे कुछ? जी, इसके लिए बेटा इंशाल्लाह ताला व्हेनेवर पार्टी विल गेट पावर, गवर्नमेंट में आएगी, तो अपने बैलेंस, हर प्रोविंस को बैलेंस करना है इन हेल्थ, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, इवन मैं वेस्ट इंडीज में गया, मैं डोमिनिका में गया, तो वहां पे इंडियन डॉक्टर्स मिले, पाकिस्तानी डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये आप मीडिया में अक्सर सुनते हैं कि जी हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम सैचुरेशन हो जाती है। तो वो झूठ बोलते हैं अपनी जात
کے ساتھ بھی, اپنے ملک کے ساتھ بھی, اپنی نئی جنریشن کے ساتھ بھی. میری نئی جنریشن کے کتنے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں ہر سال. 1,30,000 بچہ جو کرائٹیریا پورا کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملتا. کیا یہ احساس ہے کسی کو؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں. تو ہم نے پروونس کو ایکولی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم ادھر بھی میڈیکل کالجز کریٹ کریں گے, پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا. ہم وعدے نہیں عمل کرتے ہیں. پاکستان عوامی قوت.